किस चीज पे हम पलेंगे? हम मर गए हम। कैसी सरकार है? कहाँ है सरकार? रोड आपका 300 मीटर पैच ठीक नहीं हो रहा है, आप जंग लड़ने की बात कर रहे हो। अरे हमारे फौज काबिल फौज है, उनके हवाले कर दो, उनके हवाले कर दो, वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। पहले तो हमारा टूरिज्म खत्म हो चुका है, आप सेब भी खत्म करोगे। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे हमारे घर में एक्सपेंसेस है, वो कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? मर गए हम। I'm at one of the largest fruit mandis of the Kashmir Valley here in Parampora, and around me, these stacks that you're seeing is apple, which is stuck, and the situation is such that the road closure, the Jammu Srinagar National Highway that has been closed for the last 1 month, has led to a crisis as far as horticulture industry is concerned. Now, let me tell you, this is the real backbone of Kashmir's economy. Tourism obviously is hyped, but it is a 20,000 crore industry. Every year during this time, there is apple harvest, and right now also you go to the orchard areas, you go to the length and breadth of Kashmir, you will find only apples. Orchards are filled with apples. You have mandis which are jam-packed with these stacks with apples, and issue is that since the trucks are getting stuck and the apple is rotting, this is already leading to massive losses for the fruit growers, for the kisan who through the year works hard for this 15-20 day window, because right now what he does would everything will depend on that his earnings and his loans and everything. Whatever he earns right now is what he'll spend throughout the year, be it his family, livelihood, or paying the loans. But right now the situation is that apple is stuck. Tons and tons and tons of apple, be it orchards where it has been harvested, or places like these. Now this is the delicious variety which ripens first, and this variety right now forms the most of the apple supply that is going out of Kashmir. Now other varieties will start, and this is like very sensitive. I mean, it cannot remain stuck in trucks for days, and that's exactly what is happening. Thousands of trucks were stuck, and right now very emotional visuals where these kisans, these apple growers are on the streets, they are protesting, and they are demanding that this road should be made stable immediately so that they can send their produce. Now, right now, as you could be seeing, these trucks are being loaded with more apple. Their hope is that they'll send it across. They are right now unsure whether they'll be able to send it to Jammu, Delhi, or whether these trucks will get stuck. But they're still loading these trucks with the hope that they can go to the other side, move past Udhampur, which is the troubled area, and they can reach to various markets of the country. The issue right now is that everyone is shocked that how in this day and age you have a situation in Udhampur where all the might of government of India, the NHAI, the Roads Surface Ministry, has not been able to clear a stretch of around 300 meters of road where trucks are getting stuck, and that is leading to a long traffic jam of trucks. Now already close to 1,000 crore loss. But this can mount, because if something is not done in the next few days, road made stable, these apples taken out, then this is going to be a monumental loss for Kashmir's economy, for the horticulture sector, and we could see the impact through job losses and other things, because already Kashmir's economy is suffering. You had the Pahalgam terror attack, which absolutely smashed the tourism season, which is still derailed. You had the rotten meat scandal that hit the eateries, restaurant business, which again is seeing job losses. 80% sales have dipped. And now the final nail in the coffin, where the horticulture sector, which is the real backbone, has been smashed. The apple season is being absolutely threatened. Its harvest is happening by this road closure. So we'll have to wait and see what happens. The people are also angry with Umar Abdullah government, because they say that for 20 days they were sleeping, no comment, nothing. And now once protests started, once they felt the heat, Umar Abdullah also spoke about it, and the ministers are now rushing to the location in Udhampur. So what were they doing for the 20 days? They should have been on the road. They should have been in connection with the government of India. They should have camped on the spot and overseen the work there, the restoration work there, which was
missing. फारूक साहब, आप ग्रोअर भी हैं, आप जो है इसको बाहर भेज रहे हैं सेब को, तो ये बताइए कि कितना नुकसान है? बहुत सारी बातें हो रही हैं, फिगर्स हो रहे हैं कि हाईवे बंद होने की वजह से, तो आपको क्या लग रहा है कितना नुकसान है और आगे कुछ उम्मीद बन रही है? सर देखो, अगर हम नुकसान का आइडिया लगा देंगे, नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल पिछले 18 दिन से रोड बंद था। जब ये रोड 4-5 दिन था, हम 400, 500, 600, 700 करोड़। अगर हम देखेंगे अभी पीक सीजन है, हर दिन मेरे हिसाब से 1500 से 2000 गाड़ियां हर मंडी से डिस्पैच हो रही है, जैसे शोपियान हो गया, सोपोर हो गया, श्रीनगर मंडी हो गई। तो अगर हम हर दिन की 2000 गाड़ियां ले लेंगे, पिछले 18 दिन से हाईवे ब्लॉक है। 18 दिन में अगर हम ये करेंगे तो ये बहुत गाड़ियां कैलकुलेट हो जाएंगी। तो नुकसान को हम अंदाजा करेंगे, 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। तो इसमें मुझे लग रहा है अभी इनिशियल स्टेज जो था 30% क्रॉप हार्वेस्ट हुआ था और पीक सीजन चल रहा है। मेरे हिसाब से 1500 से 2000 करोड़ का लॉस अभी तक हो चुका है और ज्यादा भी। ये तो फिगर्स हैं, बट जब हम रियलिटी देख रहे हैं, जैसे कि अर्ली वेराइटीज हमारी बबगोशा था, वो तो पूरा वैनिश हो गया। उसके बाद नाक आ गया, वो भी पूरा खत्म हो गया। और इधर फॉल ऑन फ्रूट का भी एक सिस्टम चलता था जिसको हम गिरान कहते थे, वो भी बहुत बाहर जाता था, वो उन्होंने तो पूरा बंद ही किया। अभी हम देखेंगे जो जूसेस के लिए यूज होते थे, वो भी एक अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे लोगों को, जो उसमें भी नुकसान हो रहा है। इसके बाद जो रनिंग सीजन अभी है, देखो 9-9, 10-10 दिन गाड़ियां कंप्लीट श्रीनगर से जम्मू नहीं पहुंच रही है। हमारा एक कस्टमर है, उसने हमसे 5 दिन पहले क्राफ्ट माल खरीदा है, उसकी सब गाड़ियां इधर बड़ी हुई है। और वो आज सुबह मेरे पास आया था, वो रो रहा था। उसने कहा मैंने 40 लाख का माल ले लिया पूरा। वो तो एक इंडिविजुअल का 40 लाख है। ऐसे कितने इंडिविजुअल हो गए जिनका माल ब्लॉक है? तो अब आप जो अभी तक सरकार, अगर क्योंकि यहाँ भी वो इशू है कि डुअल कंट्रोल है, एलजी की सरकार है, फिर उमर अब्दुल्ला, कल उन्होंने फाइनली बात की कि जो है एनएचआई पे सेंटर पे उन्होंने कहा कि उनका कसूर है। तो आपको क्या लगता है कि अभी कोई उम्मीद है कि आपको कि रास्ता खुलेगा? आप क्योंकि आपके ट्रक अभी भी लोड हो रहे हैं, आपको लगता है पहुंच पाएंगे? अभी आप ये बस चांस पे कर रहे हैं? सर अब तो बस चांस पे कर रहे हैं। उनकी जो कल एश्योरेंस, देखो उमर साहब से हमारी एक रिक्वेस्ट है, उनको ये 20 दिन पहले से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो कल उनको थोड़ा बहुत ये हो गया कि जब लोगों ने पूरा रोड पे आना शुरू किया, तब उन्होंने इस किया था। मेरे हिसाब से इसके लिए मिनिस्ट्री होनी चाहिए थी, हार्टिकल्चर मिनिस्ट्री, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उनको उधर ही होना चाहिए। तो उन्होंने उधर डेरा लगा के ये 2-2.5 हजार मीटर का पैच है, तो 2-2.5 हजार मीटर का पैच आज 18 दिन से पूरा नहीं हो रहा। तो ये तो हम यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम तो बोलते हैं हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। एक छोटा सा पैच 20 दिन से पड़ा हुआ है और इसमें देखो पूरी वैली इन्वॉल्व है। अगर हम देखेंगे जो फ्रूट इंडस्ट्री है ना, हार्टिकल्चर जो इंडस्ट्री है, ये कश्मीर का हम बैकबोन बोल रहे हैं। 70 to 80% इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस साल ऑलरेडी हमारा टूरिज्म बैठा था, अब ये हार्टिकल्चर में भी ये हो गया। तो मुझे लग रहा है इस साल बहुत तकलीफें होगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पे ज्यादा मार्जिनल फार्मर्स हैं, किसी की 500-600 पेटियां थी, वो पूरी 600 पेटियां उसकी रोड में फंसी हुई, तो उसका पूरे साल का मेहनत खत्म हो गया। वो तो रोड पे आ गया, उसका कैसे चलेगा? हमारा जो भी रूरल एरियाज में सब इसी पे होता है। तो ये बताइए कि नुकसान आपने बोला 1500 करोड़, आगे कोई उम्मीद आपको दिख रही है? आपके जो एसोसिएशन है सरकार से मिली, गवर्नर से भी मिली, आपको कोई एश्योरेंस मिला है या आपको लगता है कि सिर्फ बातें हैं, ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा? नहीं, मेरे ख्याल से अब ये डिवाइड है। एलजी हुकूमत और जो हमारी जो स्टेट की हुकूमत है, इनको आपस में पहले इनकी कोई हमारे एश्योरेंस तो मिल रही है। कल हर जगह से एश्योरेंस मिल के रोड चालू कर देंगे, और इन्होंने 4 दिन पहले बोल दिया कि हमने रोड खोल दिया। लेकिन मुझे लग रहा है जो 3000 गाड़ियां थी उसमें से 400 गाड़ियां इन्होंने छोड़ दी, फिर उनको रामबद में स्टाफ किया, फिर से छोड़ दिया। तो उस हिसाब से मतलब हम उम्मीद करते हैं, हमारी यही अब होप है, खाली हम होप है। तो आप ये बताइए कि आखिरी सवाल की इम्पैक्ट कब आपको और कितना दिख रहा है? आगे आप क्या देख रहे हैं कि क्योंकि जो एक के बाद एक झटका लगा इस बार इकोनॉमी को, इसका इम्पैक्ट कितना बुरा आप देख रहे हैं? कौन से सेक्टर्स पे आगे देख रहे हैं? नहीं, अगर हम देखेंगे हर सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक इंडिविजुअल सेक्टर इस पे हम नहीं करेंगे। जो हमारे जो भी ग्रोवर्स है, आज जो विलेज की रूरल लाइफ है ना, वो इसी पे निर्भर है। तब उनका नवंबर दिसंबर में लोगों के घर पे शादियां थी, उन आगे विंटर आने वाले हैं, सब ग्रोवर इसी पे रहते हैं। तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जैसे अभी हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री तो खत्म हो गई थी, मुझे लग रहा है ये उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट, उससे 3-4 जॉब लॉसेस तो बहुत है।
जॉब लॉसेस भी हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे प्रॉब्लम ही हो रही है। एक पैटर्न आप देखिए, कभी लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड बेच के, कभी बाहर की मंडियों में मुल्क से बाहर सेब सस्ती कीमतों पे इंपोर्ट करके, और कभी हमारे रास्ते बंद करके, ये फ्रूट इकॉनमी, हॉर्टिकल्चर इकॉनमी जो हमारी 70% से भी ज़्यादा है, बड़ी ये है, कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में, उसके साथ एक लड़ाई चल रही है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर 75% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकॉनमी। टूरिज़्म से भी ज़्यादा इकॉनमी, 7 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर का होता है। और आप देखिए, एक पैटर्न है बाज़ाब्ता, हमारे हॉर्टिकल्चर के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल है कि अगर आज भी इतना हल्ला होने के बावजूद भी, जब आज श्रीनगर जम्मू हाईवे को ओपन किया गया, आज भी जम्मू से ट्रैफिक को आने की इजाज़त दी गई, मगर हमारे जो ट्रक्स हैं जो फंसी हुए हैं उनको श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह से पिछले साल या उससे 1 साल पहले हाईवे पे ट्रकों को रोका गया था, जानबूझ के रोका गया था, और जब तक हमारे प्रोडक्ट सड़ ना जाए, हमारे मेवा वगैरह सड़ ना जाए, तब तक ट्रक्स को रोका गया था। एक पैटर्न नज़र आता है कि हमारी इकॉनमी के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसी की कड़ी जो है आज भी आप देख रहे हैं। मगर यहाँ पे कल जो कोशिश की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात उठाई गई थी, एसोसिएशन ने, शबीर साहब ने जो लोकल ऑनरेबल एमएलए है, जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, इन्होंने जो कोशिश की थी, कहीं पे इन्होंने बात सुनी है और मोगर रोड के ज़रिए आज ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी गई है शोपियां से। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे भी ट्रक्स को जाने की जल्द से जल्द इजाज़त दी जाए। कितना नुकसान हुआ? नुकसान सब अरबों में खरबों में नुकसान हो गया लोगों का। कोई छोटा व्यापारी, उसको छोटा हिसाब से नुकसान हो गया, कोई बड़ा व्यापारी है उसको बहुत नुकसान हो गया, सबको कुल मिला के सबको नुकसान हो गया, वो भी रोड के कारण से। अगर गवर्नमेंट चाहेगा सर, रोड 2 दिन 5 दिन में सारा रोड जम्मू से इधर तक, मतलब इसमें सोना लगेगा रोड पे, इतना रोड अच्छा बनेगा, मगर गवर्नमेंट नहीं चाहता है। बस हमारा यही है, कश्मीर को डुबाने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे खत्म हो जाएगा, ये कैसे सड़क पे आएगा, बस ये हमें जयकार करेगा, नमस्ते करेगा, और कुछ नहीं है। ये हमारा श्रीनगर में इस वक्त सबसे बड़ा फल है, जिससे हमारा इसमें उम्मीद होता है, इसमें आश होता है। सब बड़ा बिजनेस है ये, किसी को बैंक का लोन है, किसी का कर्जा उठाया, बगीचे वाले को कोई शादी था, बेटी का खुशी था, शादी है, पैसा आएगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो काम करूँगा, किसी का तामीर बनाना था, सब डूब गया सर, किसी का कुछ मतलब रहा नहीं है। बस हम बहुत परेशान हो गया। 20 दिन से 10 दिन से बोल रहा था आज छोड़ेगा, कल छोड़ेगा, जब छोड़ता है तो 100-200 गाड़ी का छोड़ता है, फिर आगे फिर नाका बंद करता है, बस गाड़ी में माल सड़ता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। बस अंदर अंदर से हम मर गया सर। बस हम यही कहते हैं, हमारा माल में नुकसान हो गया, अब कौन सा इसका भरपूरी करेगा। गाड़ी वाला भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, सब कुछ परेशान है। अब इसमें कौन सा मतलब गवर्नमेंट ने क्या हमें इसमें बारे में किया कि लोगों का नुकसान हो रहा है, गाड़ी वाले को नुकसान हो रहा है, कि हम इसमें कोई इमदाद करेगा, किसी ने कुछ नहीं बोला। बस तस्त मस्त सब है, न इधर का गवर्नमेंट कुछ करता है, न मतलब ऐसा ही आगे वाला कुछ करता है सर। हुकूमत से क्या अपील है? हुकूमत से यही अपील है, बस हमारी तरफ से देखे, बस मुस्लिम लोगों की तरफ देखे कि कितना नुकसान हो रहा है, बस इसमें कोई भरपूरी होना चाहिए। नुकसान बहुत है, लोगों का कर्जा है, बैंक का कर्जा है, लोगों का एक दूसरे का मतलब लेन देन है, अब क्या करेगा सर, सब इसमें मतलब इन्वॉल्व है, सब इसमें नुकसान में है। So, lot of unanswered questions, a lot of heat as far as Umar Abdullah is concerned or the government is concerned. At the same time, similar questions for the government of India, for the LG's admin, that what are they doing? Don't they know how these farmers are suffering? So now the hope is that the road will stabilize and soon you'll have a connection where these trucks can go, this apple produce can go, because still there is time that the season could be salvaged, and this extreme depression that the economy can go into if this is not salvaged, I mean this is stopped, and these trucks really manage to go to the other side, and hope is that the highway will be restored now at the earliest with a stable connection. With camp person Tariq Lonmeer for East Srinagar for India Today.